Assalamualaikum online participant. Am I audible? यस थैंक यू सो मच। स्क्रीन भी मेरी विजिबल है आपको? Assalamualaikum, I welcome you all to the corporate briefing session of the Asli General Insurance Company 2026. We will be starting the session after Tilawat Quran. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Corporate briefing section has been divided into the 4 sections. The first 4 to 5 slides will be providing the company profile, and this financial information will be displayed at slide 6 to 13, and then the outlook at 14 to 15, the question and answer session. And if any of the online participants do have any question, they can raise the hand, or they can unmute their mic to ask the question, or they can wait for the question and answer session at the end of the session. We will be starting from the company profile. Asli General Insurance Company is a listed company incorporated in 1995, providing the fire, marine, motor, health, and miscellaneous insurance services by presenting itself in 15 cities with a 20 plus over branch network. We are rated AA plus by PACRA and BIS. We have parent entity Army Welfare Trust that is holding 60.23% of the shareholding. That was 59.25% shareholding before the right issue. After the right issue, their shareholding has been increased to 60.23%. Ultimately, after the right issue, we have share capital of 1 billion and 6 million. Now we will be presenting the financial information. This slide is presenting the gross premium detail by segment wise. In fire segment, we have registered a growth of 16% over last year 2024. This was mainly due to the increase of the FF premium by 25 million and addition of couple of new clients which added around 50 million into the overall fire premium. That is giving which gives the 16% growth to the fire segment. मैरीन की हम बात करें तो मैरीन सिग्निफिकेंटली जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हो पाया, बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से 1% इसमें ड्रॉप जो है ना वो नजर आया, जिसकी रीजन ये है कि लास्ट ईयर 2024 में बीट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि 2025 में सिक्योर नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें ड्रॉप देखने को आया। मोटर सेगमेंट की बात की जाए तो मोटर सेगमेंट में 20% ग्रोथ है। इसमें बैंक ऑफ पंजाब जो है ये मेजर इसमें इंक्रीज आया है, जिसने कंट्रीब्यूट किया है 78 मिलियन अराउंड इसका प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। बाकी इसके अंदर पोर्टफोलियो इंक्रीज है। आल्दो के इस मोटर सेगमेंट के अंदर जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ड्रॉप हुई है ड्यू टू द कंपटीशन, बट अल्टीमेटली पोर्टफोलियो की इंक्रीज की वजह से इसमें 20% जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आई है।
हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ जो है वो 23% इम्प्रूव हुआ है। इसमें जो है वो एनटीडीसी एक क्लाइंट है हमारा मेजर क्लाइंट जिसने इसमें मेजरली कंट्रीब्यूट इसके अंदर किया है। और बाकी जो है अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है उनसे प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ है। और हेल्थ सेगमेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल ग्रॉस प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द मिक्स जीपी मिक्स। मिसलिनियस सेगमेंट की बात करें तो मिसलिनियस सेगमेंट में 11% जो है ना वो ग्रोथ नजर आई है, जिसमें जो है आलू के लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमें बिजनेस मिला था, लेकिन 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमें बिजनेस में ड्रॉप मिला, तो जिसको थोड़ा सा कवर अप करने की ट्राई की गई। और एक नया क्लाइंट इसमें ऐड हुआ पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल टेक जिसने 65 मिलियन इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया क्रॉप के बिजनेस में। और इसके अलावा जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स का प्रीमियम इंक्रीज हुआ, जिससे अल्टीमेटली 11% ग्रोथ मिसलेनियस सेगमेंट को मिली। तो ओवरऑल जो है वो ग्रॉस प्रीमियम 17% से इंक्रीज आया कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। This is the business mix comparison in which health is the major contributor and remains the dominant segment, similarly as compared to the last year 2024. मोटर जो है वो सेकंड कंट्रीब्यूटर रहा। लास्ट ईयर 2024 के अंदर भी मोटर सेगमेंट जो है वो सेकंड कंट्रीब्यूटर था मेजर। फायर जो है वो 2025 के अंदर उसने 18% कंट्रीब्यूट किया कंपैरिजन टू दी 19% ऑफ द लास्ट ईयर। सिमिलरली miscellaneous segments contributed 14% during 2025 in comparison to the 15% in 2024. This slide is the snapshot of the profitability breakup, how the Ajico contributed overall profitability. टोटल 2025 के अंदर अजीको ने 1 बिलियन और 1.1 बिलियन जो है वो जनरेट किया है थ्रू ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम, जिसमें जो है 291 मिलियन जो है वो अंडर राइटिंग से कंट्रीब्यूट हुआ है। 826 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट अदर इनकम और रेंटल इनकम से कंट्रीब्यूशन आई है। कंपैरेटिवली बात की जाए तो लास्ट ईयर 2024 के अंदर 1 बिलियन एंड 60 मिलियन जो है वो अजीको ने जनरेट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें 266 मिलियन अंडर राइटिंग से जनरेट किया और 794 जो है वो इन्वेस्टमेंट और अदर इनकम से कंट्रीब्यूट किया। ओवरऑल 5% ग्रोथ जो है वो देखने में आई इन कंपैरिजन टू दी 2024। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि हमने एनुअल 2025 के एनुअल अकाउंट्स के अंदर भी पब्लिश की है। इसमें नेट इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसके अंदर 12% जो है ना वो ग्रोथ देखने में आई है, जिसमें फायर सेगमेंट ने जो है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है 16%। बाकी जो मैरीन मोटर मिसलेनियस और हेल्थ सेगमेंट है उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। नेट प्रीमियम के अंदर फायर सेगमेंट ने 16% नेगेटिव कंट्रीब्यूट करने की रीजन ये है कि इसमें लाइक हायर सेशन हुई, जिसकी वजह से पार्टिकुलरली एफएफ ग्रुप के अंदर जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइक इसने कंट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं किया। बाकी चारों सेगमेंट्स ने नेट प्रीमियम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया और इससे 12% जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिली। नेट इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 15% इसमें इंक्रीज आया, जिसमें फायर सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट और मिसलेनियस सेगमेंट जो है ना ये अनफेवरेबल रहे इन टर्म्स ऑफ द क्लेम्स फॉर द कंपनी। फायर के अंदर जो है वो एक हमें मेजर क्लेम देखने को मिला 151 मिलियन का ड्यू टू द फ्लड इन सियालकोट। एक मेडिसिन क्लाइंट था उसका स्टाफ जो है वो डैमेज हुआ, जिसकी वजह से हम 151 मिलियन इसका लॉस पे करना पड़ा। बाकी मल्टीपल जो है वो क्लाइंट से मल्टीपल क्लेम्स थे इस फायर के अंदर। हेल्थ के अंदर हमें जो है ना वो थोड़ा सा लॉस देखने को मिला हमारे मेजर क्लाइंट्स एनटीडीसी और पीसीएचआई में,
जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा नेट क्लेम्स में इंक्रीज हमें देखने को मिला। 21% लास्ट ईयर से जो है ना वो हेल्थ के अंदर क्लेम्स इंक्रीज हुए। मिसलिनियस सेगमेंट के अंदर कुछ क्लेम इंक्रीज हुए जो कि मल्टीपल क्लेम से, कोई मेजर क्लेम नहीं है, मल्टीपल क्लेम से। तो अल्टीमेटली जो है ना वो फायर, हेल्थ और मिसलिनियस सेगमेंट, ये तीन सेगमेंट्स जिन्होंने इसमें नेगेटिवली ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर। अल्टीमेटली जो है वो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन 8% ग्रोथ के साथ अचीव किया लास्ट ईयर से। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इसमें 7% जो है वो इंक्रीज आया, जिसमें मेजर इंक्रीज की रीजन जो है वो डेप्रिसिएशन थी। डेप्रिसिएशन में 40 मिलियन इंक्रीज आया ड्यू टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। और इसके अलावा कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में इंक्रीज था। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस जो है वो इंक्रीज हुए कि हमें काफी सारे नोटिस जो है ना वो टैक्स नोटिस में काफी ज्यादा इंक्रीज आया, जिसकी वजह से हमें कुछ लीगल कॉस्ट ज्यादा इंकर करना पड़ी लास्ट ईयर से। और इसके अलावा जो इसके अंदर बैंक चार्जेस थे, बैंक चार्जेस में भी थोड़ा सा नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया ड्यू टू द इंक्रीज्ड बिजनेस एक्टिविटी। तो ओवरऑल जो है वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 7% इंक्रीज रहा और अंडर राइटिंग रिजल्ट जो है वो 12% ग्रोथ के साथ आए ड्यू टू द रीजंस एज एक्सप्लेन्ड। इन्वेस्टमेंट और अदर इनकम में जो है वो 5% इंक्रीज आया। इन्वेस्टमेंट इनकम में जो है ना वो लास्ट ईयर से इंक्रीज था, बट जो अदर इनकम थी, अदर इनकम ड्रॉप हुई ड्यू टू द डिक्रीज इन दी बैंक प्रॉफिट्स। फाइनेंस कास्ट में इंक्रीज 87% कंपैरेटिवली देखने को मिला, जिसकी IFRS 16 की एप्लीकेशन थी, जिस डिस्काउंटिंग हुई राइट ऑफ यूज एसेट्स की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें 27 मिलियन का इम्पैक्ट हुआ आया। अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने 4.5% के साथ 965 मिलियन अचीव किया और उसमें तकाफुल की कंट्रीब्यूशन 151 मिलियन थी। तो अल्टीमेटली 1.1 बिलियन जो है वो प्रॉफिट हमने अचीव किया 5% ग्रोथ के साथ, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 6% रही और 695 मिलियन जो है वो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स रिकॉर्ड किया गया। और अल्टीमेटली जो है इससे ईपीएस 9.66 निकली बिफोर द राइट इशू। चूंकि कंपनी ने दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में अपना राइट इशू कंप्लीट किया था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ईपीएस इसकी डाइल्यूट हुई और आफ्टर डाइल्यूशन 8.69 इसकी ईपीएस रिपोर्ट हुई, जो कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर को स्टेट करके 8.31 थी, रिप्रेजेंटिंग अराउंड 5% ग्रोथ। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द अंडरराइटिंग रिजल्ट्स ओवर द लास्ट 5 ईयर। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2021 से और थोड़ी सी वेरिएशन आई, बट कंपनी जो है ना वो अगेन इस पोजीशन में आ गई कि अपने अंडरराइटिंग रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रही है। तो 2025 के अंदर 221 मिलियन जो है ना वो रिपोर्ट हुआ, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। This is a snapshot of the investment income from 2021. We can see the continuously increase in the investment income, which witness the company's strategy and better allocation of the investment portfolio. Company has remained positive towards the cash payouts and to the shareholders. लास्ट ईयर जो है ना हमने इंटरम डिविडेंड दिया ₹2 पर शेयर, और इस साल जो है ना 2025 में हमने 2.50 इंटरम डिविडेंड पे किया। फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर 2024 के अंदर हमने 2.50 पे किया और इस साल 2025 में भी 2.50 हमने पे किया। तो अल्टीमेटली 2024 के अंदर हमने 4.50 पे किया और 2025 के अंदर हमने ₹5 जो है ना वो डिविडेंड जो है ना वो पे आउट किया, और जो कि 2021 से ऑनवर्ड हम कंटिन्यूसली इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक।
कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट कर सकती हैं, जिसमें पोस्ट स्टेबलाइजेशन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि अभी यूएस और ईरान की जंग की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा बिजनेस के अंदर डिप और बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट उसका नजर आ रहा है। बट अगर जो है ना वो वार जो है ना वो रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है और जो है वो लाइक एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो वी कैन सी के हम जो है ना इसको फ्यूचर में लाइक इकोनॉमी भी स्टेबल होगी और उससे जितनी जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी अजीब को जो है ना उसको वो कैटर करेगा अकॉर्डिंगली। और ये ऑपरेशन के इम्पैक्ट के साथ साथ इसका जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में, अगर जो कि इस तरह अगर वो ईरान जंग कंटिन्यू रहती है तो। If any of the participants have any question, they can please ask. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, please. Sir, my question is that will company maintain the payout, interim payout, or will it decrease or increase? ने जैसे आपने देखा कि रिसेंट ईयर्स में कंपनी की जो परफॉर्मेंस बढ़ती गई, तो उसके साथ साथ हमारी डिविडेंड पे आउट थी वो भी इन परसेंटेज टर्म्स अकॉर्डिंगली बढ़ती गई। और इससे आप नोट कर सकते हैं पिछले चंद साल के ट्रेंड से कि कंपनी का जो पे आउट है वो डायरेक्टली लिंक है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह अगर फर्दर ग्रो करेगी तो अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट टर्म्स में पे आउट भी इंप्रूव होता जाएगा। तो लास्ट ईयर हमने 2.5 रुपये इंटरम पे आउट किया था, लेकिन राइट इशू करने की वजह से शेयर ज्यादा हो गए हैं। तो इस दफा भी इंटरम पे आउट का कोई है या नहीं है? जैसे मैंने कहा कि ये डायरेक्टली लिंक होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, क्योंकि अगर आप ये देखें तो एक सर्टेन परसेंटेज एक रेंज है जिसके अंदर हमारा जो अल्टीमेट पे आउट है वो रहता है, और जो टोटल अर्निंग पर शेयर है उससे आप ये निकाल सकते हैं कि तकरीबन कितने परसेंट ऑफ दैट हमने अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को पे आउट किया। तो इस दफा भी सबसे पहले तो ड्राइविंग फैक्टर अर्निंग पर शेयर होगा। अर्निंग पर शेयर जो आएगा उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट डिटरमिनेटिंग फैक्टर जो डिविडेंड पे आउट है वो होगा। और ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली बोर्ड का डिस्कशन होगा इस बारे में। आपको कुछ स्पेसिफिक्स के साथ अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहते हैं, किसी पे कोई हमारी तरफ से अगर एक्सप्लेनेशन या फीडबैक चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रेज द क्वेश्चन। So Elsa, if you have any particular question, आपने AGM में कुछ क्वेश्चन किया हो? नहीं जी, I have no questions. अभी AGM पे जो था वो डिस्कस हो गया था। थैंक यू फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दो। Thank you very much. Thank you so much. Thank you everyone for participating and listening and contributing. Thank you very much. Thank you. Thank you. We allow ending the presentation for today's session. Thank you very much. God bless.